Students, now we shall go phases of teaching. Teaching is a complex task. For performing this task, a systematic planning is needed. Teaching is to be considered in terms of various steps, and different steps constituting the process are called the phases of teaching. Jackson thinks that if we are to obtain a complete description of the teaching activity, we must consider what the teacher does before and after his regular teaching in the class. Jackson divides the teaching act into three phases of teaching: pre-teaching, post-teaching and pre-teaching, post-teaching and शिक्षण क्या है? एक बहुत जटिल कार्य है. इस कार्य को करने के लिए एक व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है. It is not the absurd way, it is the systematic. Therefore we call it as the pedagogy. Pedagogy mean the science of teaching जिसे कहते हैं. तो इसलिए ये क्या है? एक व्यवस्थित है, एक ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है. Like as the science is an organized knowledge, then teaching is also organized. शिक्षण को विभिन्न चरणों के संदर्भ में माना जाता है और प्रक्रिया बनाने वाले विभिन्न चरणों को शिक्षण का चरण कहा जाता है. चरण. जैक्सन का मानना है कि यदि हमें शिक्षण गतिविधि का पूरा विवरण प्राप्त करना है तो हमें यह विचार करना है कि शिक्षक कक्षा में नियमित शिक्षण से पहले और बाद में क्या करता है. ये नहीं कि क्लास में गए, पढ़ाए, छुट्टी होगी, ऐसा नहीं है. इट हैज इट्स स्टेजेस, इट्स फेजेस. तो इन फेजेस को जो जैक्सन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो पहला जो है आपका शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, pre-active phase of teaching. That is refers to planning before going to the classroom. What planning you have to do, that is known as the pre-active phase. And second is शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था. यानी कि it means interactive phases of teaching. That means it refers to the conduct and management. Now, if you have completed pre-active phase, then you go into classroom, and after that you conduct your teaching. Then also you do your management of teaching. What management? Like as your chart, board, map, chalks, projector, these all you use at this time. This is interaction between the teacher and the taught using instructional material and subject matter. And the last one is शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था. Means post active phases of teaching. This refers to the follow up and consolidation. क्लास में गए, पढ़ाए, ये इतना जरूरी नहीं है. After that you have to take the feedback. It's very necessary. That is known as the post active phase. तो उसके अंतर्गत आप फॉलो करते हैं. ठीक है. कंसोलिडेशन रहता है. तो then there are the 3 phases of teaching. First is pre-active phase, second is interactive phase, and third one is the post-active phase. तो ये तीनों फेजेस आप याद रखेंगे. तो ये तीनों फेजेस का जैक्सन ने दिए हुए हैं. जैक्सन ने तो फर्स्ट प्री-एक्टिव फेज को हम प्लानिंग स्टेज भी कहते हैं, योजना बनाने की स्टेज. और दूसरा इंटरेक्टिव फेज, दैट मीन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे. और लास्ट जो थर्ड है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इवेल्यूशन स्टेज, जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं कि हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या वो ऑब्जेक्टिव सेट हुए या नहीं हुए. नाउ द प्री एक्टिव स्टेज, फर्स्ट स्टेज है प्री एक्टिव, पूर्व क्रिया अवस्था. Pre-active stage. The teacher at this stage hypothesis about the possible outcome of his action. As the teacher decides what textbooks to use and how to group the children for reading, or whether to notify students, parents of their poor performance. इसमें जो है टीचर अपनी योजना बनाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तीनों डोमेन के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के. उसके बाद ये डिसाइड करता है कौन सी बुक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा क्या है, ये सारी चीजें. और उसको पढ़ाने के लिए हमें किन किन जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करना है. चार्ट यूज होगा, ग्लोब यूज होगा, मैप यूज होगा, या कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है. तो ये सारी चीजें जो है यह प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत आएंगी. तो इन द प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, द प्लानिंग ऑफ टीचिंग इज कैरीड ओवर. योजना बनाना. This phase include those activities which a teacher perform before the classroom. कक्षा में जाने से पहले वो सारी चीजें जो एक टीचर करता है, ये प्री एक्टिव फेज में आएगा.
This phase includes planning a classroom, strategies and methods to be adopted, sequences, the selected content, use of teaching aids and so on. तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? पहला है आपका फॉर्मिंग ऑफ फिक्सिंग अप गोल्स, लक्ष्य तय करने का गठन. दैट मीन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना. उद्देश्यों के निर्धारण के लिए आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तीनों जो है डोमेन याद रखने हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक. और उसके बाद है आपका टेकिंग डिसीजन अबाउट द कंटेंट, सामग्री के बारे में निर्णय लेना. मैनेजिंग और सीक्वेंसिंग एप्रोप्रिएट मीन्स एंड वेज ऑफ प्रेजेंटेशन, उचित साधन और प्रस्तुति के तरीके का प्रबंधन या अनुक्रमण करना. जैसे अभी मेरे को एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि मुझे पढ़ाना था तो मेरी अभी इंटरेक्टिव फेज चल रहा है. इससे पहले मैंने ये पीपीटी और ये सारा मैटर तैयार कर लिया था, तो प्री एक्टिव फेज के अंतर्गत आया. डिसाइडिंग अबाउट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की उपयुक्त रणनीति और रणनीति के बारे में निर्णय लेना. क्योंकि हमने कौन सी जो है मैगजीन्स का यूज करना है, कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करना है, कौन सी टीचिंग टेक्निक का यूज करना है, ये सब हम पहले अपना निर्धारण कर लेते हैं. और लास्ट पॉइंट है डेवलपिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर, विशिष्ट विषय वस्तु के लिए शिक्षण रणनीति विकसित करना. तो प्री एक्टिव के बाद सेकंड आता है आपका इंटरेक्टिव स्टेज, जहां पर बच्चों का इंटरेक्शन होता है, बच्चों का इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी हम इसको कह सकते हैं. दिस इज द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इंटरेक्शन. At this stage, the teacher uses a number of strategies for achieving the goals already set in the interactive setting. ये वास्तविक शिक्षा शिक्षण है. इस स्तर पर शिक्षक अंतर सक्रिय सेटिंग में पहले से यह क्या है? वास्तविक कक्षा शिक्षण. कक्षा में जो टीचिंग चल रही होती है, ये इंटरेक्टिव फेज के अंतर्गत ही आता है. इस स्तर पर शिक्षक अंतर सक्रिय सेटिंग में पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग करता है. The task of keeping pupils involved may entail explanation, demonstration, definition, and other logical operations that have come to be thought of as the heart of teaching. तो इसके अंतर्गत जो है आपका इस क्या क्या आएगा, तो इसमें हम देखते हैं. The second phase include the execution of the plan, where learning experiences are provided to students through suitable modes such as classroom, laboratory, outdoor, or library. All those activities which are performed by the teacher after entering classes are combined together under the interactive phase of teaching. Generally, these activities are concerned with the presentation and delivery of the content in a classroom. जो हमने सब्जेक्ट मैटर तैयार किया उसकी डिलीवरी, उनको बच्चों तक देना, उनको बच्चों को समझाना या उनको बच्चों को बताना, ये डिलीवरी के अंतर्गत आएगा जो है. The teacher provides learner verbal stimulation of various kinds, make an explanation, ask question, listen to the student's response and provide guidance. This phase includes activities like as sizing up of the class, कितनी कक्षा का माइक्रो टीचिंग है, 10 बच्चे हैं, या फिर मेगा टीचिंग है, 20 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे, 40, कितने रखने हैं, साइजिंग ऑफ द क्लास, नोइंग अबाउट द प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को क्या उससे पहले से कितना ज्ञान है उस सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एक्स्ट्रा, अबाउट द लर्नर बाय प्रॉबिंग क्वेश्चन एंड डायग्नोसिंग सेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट. It is the stage for actual teaching. In this way, this was the second phase, interactive phase. तो इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है. ठीक है, तो पहला है आपका perceiving the size of the class by the teacher to identify students. छात्रों की पहचान करने के लिए शिक्षक द्वारा कक्षा के आकार को समझना. Diagnosing the achievements of the learner. शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का निदान करना. Action or achievement, initiation or response. This involves the following operation. कार्रवाई या उपलब्धि, आरंभ या प्रतिक्रिया. इसके अंतर्गत आपका selection of stimuli, उत्तेजनाओं का चयन करना. प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुली की प्रस्तुति. स्टिमुली मीन वही उत्तेजनाओं का प्रस्तुतिकरण. फीडबैक ऑफ रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण की प्रतिक्रिया. और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की रणनीतियों का विकास.
तो in this way ये आपका इंटरेक्टिव फेज. एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट एक्टिव स्टेज, उत्तर सक्रिय अवस्था. ठीक है, उत्तर सक्रिय अवस्था. ठीक है. After the classroom, that is the post-active stage concerning evaluation provides necessary feedback to the teachers and the student in the bringing desirable improvement in their performance. It is related with both teaching and learning. उत्तर सक्रिय चरण यानी मूल्यांकन से संबंधित पोस्ट सक्रिय चरण शिक्षक और छात्रों को उनके प्रदर्शन में वांछनीय सुधार लाने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया प्रदान करता है. यह शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित है. That means पोस्ट एक्टिव फेज में इवेल्युएशन होता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई. ठीक है, हमारा जो हमने उद्देश्य पूरे हुए या नहीं, या उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने और क्या करना है, या हमने अपनी टीचिंग में और कहाँ सुधार लाना है, या किस तरह से हमने और जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का यूज करना है, इन सब का इवेल्युएशन करना होता है. तो द टीचर एनालाइज as to what extent the student have grasped the material presented to them. It is in fact the assessment of the interactive process. जो हमारे इंटरेक्टिव अंतःक्रिया प्रक्रिया थी उसका क्या है, ये आपका असेसमेंट है, आकलन करना है. It helps the teacher to teach things better in future. It also helps the student to learn things better. It enables the teacher to decide whether he or she should proceed with the न्यू कंटेंट और रीटीच. भाई हमें उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, हमें दोबारा तो नहीं पढ़ाना है, दोबारा तो टीच नहीं करना है जो हम पढ़ा रहे थे, क्या जो हमने पढ़ाया है, या फिर हमें आगे बढ़ना है. तो इस तरह से यह हमें उसमें जो है क्या करता है, तो विशेषता बताता है. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या क्या शामिल होगा. Assessing the suitability of objectives determined. निर्धारित उद्देश्यों की उपयुक्तता का आकलन करना. Deciding regarding reteaching the content or further. Hello.